أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. دوستو اور بزرگوں، یہ سورہ دخان آیت نمبر 8، 9، 10، 11 اور 12 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. سورہ دخان میں یہ جو دھواں ہے جو آج بھی ہمارے ملک میں پنجاب میں شد و مد سے یہ عذاب آیا ہوا ہے اور اس سے ہماری زندگیاں ساری اجیرن ہو گئی. اور آج بھی رات خبروں میں یہی تھا کہ اس سے اتنے لوگ، لاکھوں لوگ متاثر ہوں گے. تو یہ ایک بڑی اہمیت کی حامل بات ہے کہ قرآن مجید میں یہ خبریں پہلے سے بیان کر دی ہیں کہ قیامت کی 10 نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دھواں چھا جائے گا اور اس دھوئیں کا یہ پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کہاں سے آیا. ہماری کیا صلاحیاں یہ ہیں کہ وہ ہندوستان میں وہاں پنجاب کے قریب جو کھیت جلائے ہیں ان کا دھواں ہے، یا ہم کوڑے کو آگ لگا دیتے ہیں یہ ہے، یا یہ گاڑیوں کا دھواں ہے، یا ہمارے ہاں جو فیکٹریاں چل رہی ہوتی ہیں ان کا دھواں ہے. کہ ہماری کیا صلاحیاں ہیں. لیکن قرآن مجید نے اس کو صاف صاف بیان کیا کہ یہ قیامت کی 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو دھواں چھا جائے گا اور انسانوں کی زندگیاں اجیرن ہو جائیں گی. اسی آیت پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے ہے کہ یہ مکے کے دور میں جو قحط پڑا تھا یہ اس میں بھی وہ دھواں تھا اور زندگیاں اجیرن ہو گئی تھی. یہ اس میں یہ آیت اتری ہے جو کہ مکی دور کی آیت ہے، تو اس پر یہ بات کہی جا رہی تھی. لیکن حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ رائے تھی اور رائے ہے شد و مد سے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ یہ اتنے لوگ اس میں مریں گے اور قحط آئے گا. یہ بھی اس وجہ سے کہ انسانوں کی زندگیاں جو ہیں وہ عیش پرست ہو گئی ہیں اور آرام طلب ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے دور میں بھی ایسے ایسے عذاب آتے رہے تاکہ انسان جو ہیں وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر راہ راست پہ آ جائیں. تو آج جو ہماری زندگی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں تو خاص طور پر یہ ان آیات میں عذاب علیم کا جو ذکر آیا ہے وہ منافق کے لیے آیا ہے. اور منافق کی نشانیاں 4 آپ کو پتہ ہیں کہ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، اور جب ذرا سی بات ہو تو آپے سے باہر ہو جائے، قسمیں کھانے لگ جائے، اللہ کو گواہ ٹھہرانا شروع کر دے یا گالیاں نکالنی شروع کر دے. تو یہ منافق کی 4 نشانیوں میں یہ نشانیاں بیان ہوئی ہیں. ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی خطبہ ایسا نہیں فرمایا جس میں یہ حدیث نہ ہو، لا دین لمن لا عہد له، لا ایمان لمن لا امانت له. اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس کا وعدہ نہیں ہے، اور اس کا کوئی ایمان نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے. تو آج یہ ساری بیماریاں جو ہیں یہ ہم ہی میں آئی ہیں اور آج اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. قرآن مجید نے آغاز میں منافقین کی نشانیوں میں یہ بات کہہ دی تھی، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا،
वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून, उनके दिलों में मर्ज है, बीमारी है, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है इस वजह से कि वो झूठ बोलते थे। तो आज हम भी जब कभी किसी से वादा करना होता है तो हम वादा तो नहीं करते, हम तो इरादा करते हैं, या हम कहते हैं ज़रा हम तरतीब बना लें। वादे पर तो हम आते ही नहीं। अगर वादा हो तो अल्लाह के ज़िम्मे हो जाता है इंसान का, और वादा खिलाफी तो यहूद की आदत थी और वो हम में चली पड़ी आ रही है। तो इस एतबार से देखिए कुरान मजीद ने यहाँ उस धुएं की तरफ इशारा किया है कि जो धुआं क़यामत की निशानियों में आएगा और इसमें लाखों इंसान जो है मुतासर होंगे। तो आयात का तर्जुमा करते हैं, ला इलाहा इल्लाहु, नहीं कोई माबूद सिवाय उसी के, युही व युमीत, वही जिंदा करता है वही मारता है, रब्बुकुम, तुम्हारा रब, और रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, और तुम्हारे पहले जो आबा अजदाद गुजरे हैं उनका रब ही वही था, वही अल्लाह ही उनको रोजी देता था, उनका मुश्किल कुशा हाजत रवा था। बल हुम फी शक्की यलअबून, बल्कि वो शक में पड़े हुए हैं और खेल रहे हैं, यानी यलअबून का मतलब होता है खेल रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, वो मजाक समझ रहे हैं इस बात को कि कोई बात नहीं, खैर है, अल्लाह ताला ने हमें बहुत आसाइशें दी हैं और फरावानियाँ दी हैं, हम ऐश कर रहे हैं, बस शाम को पैसे आ गए तो कोई फास्ट फूड खा लिया और ऐश की और बस दिन गुजार लिया, ना कोई ये ख्याल आया कि कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, हराम खाया हलाल खाया, कोई तमीज़ हमें नहीं रही, और बस खाने की पड़ी हुई है, ऐश है, गाड़ियाँ हैं और कारोबार हैं, ऐश इशरत है। आप शादी ब्याहों में देखें, वो इस्लाम की दीन की धज्जियाँ बिखेरी जा रही होती हैं। खानों के एतबार से देखिए, आप अपने माशरत के एतबार से, आप फहाशी के एतबार से देखिए, तो इस एतबार से हम खेल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। खेल वक्ती तौर पर खेल होता है, बड़ा उससे लुत्फ आता है, मजा आता है, इसलिए हम उसको ये कह देते हैं कि बल्कि वो कुरान ने कहा ये शक में पड़े हुए हैं और वो खेलते हैं। फर्तकिब यौम ताती समाउ बिदुखानिम मुबीन, फर्तकिब, पस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इंतजार करें, यौम ताती, उस दिन आएगा आसमान, वो एक खुला धुएं के साथ आएगा। तो यहाँ ये बात कह दी गई है, इंतजार कीजिए। रकीबा, यरकबू होता है, रकीब के एतबार से आ रहा होता है, और रकीब भी अपने जो माशूक है उसका ध्यान रख रहा होता है, उसका इंतजार कर रहा होता है कब वो आए। तो वो रकीबा तो कुरान मजीद में आया गर्दन के एतबार से, और वो गर्दन उठा के देख रहा होता है कि कब वो आए, या गर्दन फेर रहा होता है। गर्दन उड़ाना, ये रकाबातिन गुलाम आजाद करना, ये उसी से आया है कि वो इंतजार कर रहा है कि कब ये वो आए और मैं उसका इंतजार करूं। तो ये फर्तकिब कुरान मजीद में इंतजार के मानी में है, ए नबी आप इंतजार करें उस वक्त जिस दिन आएगा आसमान साथ खुला धुएं के, और फिर यक्षन्नासा, वो लोगों को ढांप लेगा, हाजा अजाबुन अलीम, और वो दर्दनाक अजाब होगा। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये दर्दनाक अजाब है, जब भी आएगा। मुनाफिक के लिए कुरान ने बयान किया, जब बोले झूठ बोले, जब वादा करे वादा खिलाफी करे, अव्वल तो हम वादा करते ही नहीं। और फिर जो इंसानों का रोल होगा वो क्या है, वो हम गिड़गिड़ा रहे होंगे इंसान, फिर हम दुआएं मांग रहे होंगे, नमाज इस्तिस्का पढ़ रहे होंगे कि या अल्लाह बारिश बरसा दे, ये धुआं जो है ये कहीं चला जाए, इस अजाब से हमें टाल दे। तो साथ ही कुरान मजीद ने उस दुआ को भी बयान किया, रब्बना कशिफ, ऐ हमारे परवरदिगार दूर कर दे हमसे अल अजाबा, इस अजाब को, इन्ना मुमिनून, बेशक हम ईमान लाने वाले हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्या वाकई ये जो दुआ है ये हम मांग रहे हैं और इस पर हमारा अमल है, क्या हम वाकई ईमान वाले हैं? कौन कहता है हम ईमान वाले हैं? ईमान तो होता है सुनो और मानो। अगर सुन के नहीं मानना तो ईमान क्या चीज़ है? हाँ, हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम जब पैदा हुए तो मुसलमान के घर, नाम भी मुसलमान के घर, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में भी। तो ये तो बहुत बड़ा एक एजाज है। जब हम ये पढ़ रहे होते हैं
आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। ईमान मुफस्सल पढ़ रहे होते और ईमान मुजमल आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुम बिल लिसानि व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। हमने ये कहा है, हाँ ठीक है, जुबानी कलामी तो हम मुसलमान हैं। यहाँ हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उनकी ये राय है कि कलमा पढ़ने से ये मुसलमान जो है वो अल्लाह ताला ने चूँकि ईमान वाला मुखातब किया इसलिए वो मोमिन है। और हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उनकी ये राय है कि कलमा पढ़ने से इस्लाम में दाखिल हुआ, मुसलमान है, लेकिन जब तक वो अमल नहीं करता तो वो मोमिन नहीं बन सकता। और ईमान है क्या? ईमान अमल का नाम है। और कैसे पैदा होता है? सुनो और मानो से पैदा होता है। सहाबा ने कहा कौलू समीअना व अताअना, हमने सुना और हमने माना, तो ये ईमान पैदा हुआ। ईमान की परख क्या है कि है भी या नहीं। अगर मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फबिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फबिक़ल्बिही फ़ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। तो ईमान की तो ये पहचान है, जितनी ज्यादा बुराई होगी उतना ईमान कम होगा, जितना ईमान ज्यादा होगा उतनी बुराई कम होगी। ये एक दूसरे की पहचान है। ना सारी बुराई खत्म होगी और ना सारे अच्छाई आएगी, नेकी आएगी, दोनों रहेगी। और इंसानों की जिंदगियों में जब ये अजाब आते हैं तो इसलिए आते हैं कि वो रास्ते आ जाएं, माफी मांगे, तौबा ताइब करें। और सबसे बड़ा एक हमारे लिए पैमाना है, वो है अजान। हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कुरान की तरफ। तो ये तो हम अगर करना शुरू कर दें, आज से कौम फैसला करे कि जब अजान हुई तो सारे मस्जिद में पहुंचेंगे, तो फिर तो तौबा ताइब है, हाँ हम ईमान ले आए हैं, उसकी बात को सुना और हमने माना। अगर ये नहीं है तो फिर कौन सी तौबा। और यहाँ कहा जा रहा है कि या अल्लाह हमसे ये अज़ाब को दूर कर दे। बेशक हम मोमिन हैं, तो मोमिन के लिए तो शर्तें हैं ईमान लेके आना, ईमान अमल वाला। और जब तक हम ईमान की बात कर रहे हैं तो कुरान मजीद को हम नाफिज नहीं करते, उस वक्त तक हमारा ईमान क्या है? हम तो कुरान को पढ़ नहीं सकते, हमें तो कुरान आता नहीं। और जब कोई कह रहे हैं कि उर्दू में तर्जमा कर ले, तर्जमा हम पढ़ रहे हैं, तो आज क्या तहरीफ नहीं हुई? आज जितनी बड़ी तहरीफ हुई है कुरान मजीद की, आप अंदाजा ही नहीं कर सकते। जब मुशर्रफ के दौर में इम्तिहान लिया गया था, ममन यरगबु मिन मिल्लति इब्राहीम, तो तहरीफ नहीं हुई, वहाँ मिल्ला की जगह उसे मिन मिल्लत कह दिया था। और लाहौर बोर्ड ने क्या किया, वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। ये कहा फ़इज़ क़ुलना उदख़ुलू हाज़िहिल क़रियता, जब तुम बस्ती में दाखिल हो जाओगे तो तुम मंदिर बन जाओगे। यहाँ आयतें ये जोड़ दी, ये तहरीफ नहीं हुई। और क्या हुआ? ये तहरीफ हमने की। हम कोशिश करेंगे कि इसका दुरुस्त तर्जमा किया जाए, दुरुस्त तर्जमा करवाया जाए, और स्कूलों में इस अरबी ग्रामर के पीरियड लगाए जाएं, ताकि ये जनरेशन है आने वाली वो कुरान की तरफ आए और हमारी तौबा कबूल हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस अज़ाब से निजात दे और हमारी ज़िंदगी जो जीरन है, या अल्लाह हमें उनसे आसानियों में बदल दे, या अल्लाह हमसे काम ले ले, तू राज़ी हो जाए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आनाअल लैलि व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम।